प्रायशः प्रकृताश्चापि स्त्रियां रहसि बिभ्रति अयं महाव्रताधरो बिभर्ति षडशी श्रियम्. Ordinary conditioned person generally embrace their wives and enjoy their company in solitary places. How wonderful it is that Lord Mahadeva, although a great master of austerity, is embracing his wives openly in the midst of an assembly of great saints. Okay, so now how do we understand this? What is happening? First come to the situation. As Chitraketu has seen Lord Shiva. Lord Shiva is embracing his wife in public and still giving class. And Chitraketu is on an aeroplane. Vimanas were there before. And he sees the situation and Chitraketu starts laughing loudly in the hearing of Lord Shiva and all the sages there. And he says, my dear Lord Shiva, what is this? Ordinary people, they embrace their wife, correct? But not in public. But you are in public embracing your wife. ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? So, no, this is not easy to understand, but Lord Shiva did not take an offense knowing Chitraketu's purpose. कौन सा language better है? English, Hindi? दोनों समझ आता है. So, Chitraketu is feeling, therefore, what is the better? That he is not offending Lord Shiva. He is rather finding that the situation is not acceptable. He is saying, Mahavrata, you are a powerful personality. You are not going to get affected. But people will take an example. दो तरह से गड़बड़ होगा. एक तरह से people will think, okay, I can also take class with my wife on the Grihastha also, in ISKCON also, Grihastha preaching. Correct? They will think, अच्छा हम भी कर सकते हैं public में class. They will sit with the wife like this and take a class. Number one, but they are not Mahavrata. They are not powerful enough, they will be affected. It is set a wrong example. Yadid achariti shrestha tat tat evataro jana. Whatever great men do, common people follow. So people take a wrong example. And Mahadeva is not ordinary. He is very great personality. The second thing which Prabhupada says, which is even more serious, the people will find fault with Lord Shiva. Because people who don't know, when my wife sits on my lap, my heart becomes affected. Correct? The touch will affect, because we are in the three modes. Will be affected by all kama, krodha, lobha, moha, mada, matsarya. Everything will affect the conscience, totally embarrassed. So, atmat manate jagat. We think Lord Shiva is also like that. Which will be even a very, very serious aparadha. Prabhupada says in the purport, in the next shloka, you think that only Krishna is pure and all devatas are all jokers. That is also not correct. They are his pure devotees. They are also pure. Mahavrata is also having tapasya, correct? Otherwise, how they have been delegated different paths. Definitely, Krishna is the perfect personality. But the devatas worshipping the Lord are not some very impure people. So, they are also deserving respect, correct? We give special respect to Krishna, but we also give some respect to devatas. It's not the devatas are not respectable, but Krishna deserves special respect. You understand this? कृष्ण का स्पेशल रेस्पेक्ट होता है, बिकॉज ही इज वो तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है. देवता का भी थोड़ा रेस्पेक्ट होता है. ऐसा नहीं कि देवता के मंदिर को देख हम रेस्पेक्ट करने का. अभी तो अगर ऐसा चीज़ होने लग गया कि लोग शिव जी की निंदा करने लगे, वो भी गलत हो जाएगा ना. देवता को भी रेस्पेक्ट होना चाहिए. ये नहीं होने तो निंदा है, तो ऐसी बकवास लोग, बकवास नहीं है वो. कह रहे कुछ लोग सोचते हैं हाँ भगवान कृष्ण की खाली पूजा होनी चाहिए, बाकी का रेस्पेक्ट की भी जरूरत नहीं, अपराध हो जाएगा. One of the offenses is to consider all the Vedic literatures to be useless. No, in the Vedic literature, Devata का भी respect किया गया. So we have to accept. Correct? Prabhupada says sometimes, sometimes disciples they respect the Lord. मेरे शिष्य जो हैं भगवान को respect करते हैं, लेकिन देवता को कभी respect नहीं करते. गलत है. क्योंकि इंडिया में जो है उसको तो मालूम है. इंडिया में जनरली जो आदमी है देवी देवता को respect करता है, वो तो बचपन से करता है, लेकिन उसको ये मालूम नहीं भगवान कौन है. वेस्ट में क्या है उनको कुछ मालूम नहीं है. तो कृष्ण क्या हो रहे हैं पता चलता है, कृष्ण को तो रेस्पेक्ट करते हैं और देवी देवता को इग्नोर करते हैं.
मैं याद है जब जगन्नाथपुरी टेम्पल गया था तो दर्शन करने के बाद जगन्नाथ के दर्शन हो गया तो देन देर इज अ षडभुजा टेम्पल Jagannath Puri inside. You have seen that. So I saw that there is a Devi temple before that. I neglected and I ran there. Immediately Panda caught. तू हिंदू नहीं है. तू हिंदू नहीं है. Because that is where you can catch. They are watching. Because Indians, whatever it is, they see Devi Devata, they will bow down and go. They will not ignore. Agreed? We should not ignore. Just like you are traveling, you see a Devi Devata temple also, at least offer some respect in the heart and the mind and then continue. We are not neglecting them. We should not neglect. Even Lord Chaitanya, who came for the tour of South India, he went to temple of even Devi Devata and he paid his respects. They deserve, giving an example, they deserve due respect. Right? So this is very important point for our purpose. The third thing is coming Mahavrata. It's very important that the brahmachari never fall down. Correct? So there are two ways. Prabhupada says the biggest shackle in this world is sex life. It binds us to the material world. Actually, we are here in this world to enjoy sex. Once you get out of this, you go back to the spiritual world. Among all the desires, this is the biggest desire. Therefore, advancement in spiritual life is seen how much we are free from sex life. Nobody to take certificate. Prabhuji, I am advancing. No. You see for yourself how much you are attracted to sex life. And okay, so therefore we need to practice. We need to practice. Okay, we need to practice so that we can become free from this. And one of the ways is that we should have different steps taken. Here you see the Chitriketu, he was so much absorbed. He was not so much a sinful soul, but he was still desiring a child, karma kanda, what we call sakam karma yoga. I'll explain this to you. It's like भगवान के आगे बैठे हुए, ठीक है? योग मतलब भगवान के आगे आप बैठे हुए, भगवान तो आगे पिक्चर में. योग भगवान के बिना नहीं होता. कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, सब योग, Krishna is there in the picture. Without, if Krishna is not there, it is not karma yoga, it is karma. समझ गए? कर्म भोग. जैसे लोग क्या करते हैं? People do some work. After work they get some profit, and the profit they enjoy. That is not yoga. That is karma bhoga. है ना? भगवान किधर उस पिक्चर में? मैं मेहनत किया, मेहनत से पैसा कमाया, मैं उसका मजा करेगा. योग किधर है उसमें? आप तो कर्म भोग कर रहे हैं. बहुत लोग बोलते हैं मैं कर्म योग कर रहा हूँ. आई एम डूइंग कर्म. क्या कर्म कर रहे हो? वो तो जानवर भी करते हैं. कर्म योग मीन्स नाउ यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ से राधा कृष्ण डेटी. बट वाई इट इज नॉट भक्ति योग? बैठे हो लेकिन मन उधर नहीं है. कोई इंद्रिय भोग की वस्तु पे मन है, खाने पे, लड़की पे, ईटिंग, स्लीपिंग, सोने पे, अपने को सुरक्षित रख. उसका मन अभी शुद्ध नहीं है. शुद्ध मन में होता है भक्ति योग. And the mind is pure, you are doing bhakti yoga. But mind, just like Chitriketu, we can say sakam karma yoga. He was. It's not that. Maybe he is regularly going to temple also. But his objective is something is distracting him. Just like japa kar rahe hain, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Every year, with love you are chanting. That is bhakti yoga. लेकिन mind is still attracted to some material desires. You are not offering bhakti yoga. You are offering sakam karma yoga. अभी presently. ये लैडर है. अभी लैडर में आप ऊपर नहीं पहुंचे हो. अभी उधर ही हो. पहले स्टेप में ही हो. सकम कर्म योग. माइंड इज डिस्ट्रैक्टेड टू सम सेंस ऑब्जेक्ट. ठीक है ना? मन किसी इंद्रिय की वस्तु से आकर्षित हो रहा है, लेकिन आप जब कर रहे हो, अभी आप भक्ति योग नहीं कर रहे. क्या कर रहे हो? ये प्रोसेस आपको भक्ति योग ले जाएगा, मैं उसको डाउट नहीं कर रहा. लेकिन अभी जो कर रहे हो आप भक्ति योग नहीं कर रहे, आप कर्म योग कर रहे हो. सकाम कर्म योग, जैसे चित्रकेतु कर रहा था. The next level is that you are sitting in front of Krishna, but you're attracted to some speculation. Oh,
अरे बाबा भगवान के पास बैठो, कृष्णा आपकी सेवा कैसे करें, वो आपके मुंह से नहीं निकल रहा. From your mouth it is not coming. Oh my dear Lord Radha Krishna, you are sitting in front. I am your servant. What do I serve you? Just like some forget, because we cannot see the deities living. Take an example. Some respectable person comes, like Narada comes, some great personality comes, or Prabhupada comes, your Acharya. Okay? So Karma Yoga means you are sitting in front. बैठे तो हुआ सामने, उतना तो है, लेकिन माइंड इज नॉट देयर. ये भी नहीं पूछ पा रहे पानी चाहिए क्या, विल आई ऑफर ए गार्लैंड, विल आई पुट सम चंदन, दैट यू आर नॉट एबल टू आस्क. योर फोकस इज ऑन योर ओन. इनसे कुछ आशीर्वाद मिल जाए. जैसे इंडिया में नहीं है, बहुत सारे लोग साधु को मिलते हैं, स्वामी जी कैन यू गिव मी सम आशीर्वाद. देयर होल ऑब्जेक्टिव इज टू गेट समथिंग फ्रॉम दैट स्वामी जी. होता है ना, some Swamiji come, crowd will collect. Why? Because he will give some ring, he will give some ash, but they are not able to sit in front. समझ आ गया? It's now very clear what is the meaning of Karma Yoga now. Take an example. प्रभुपाद जी आए, उनको आसन में हमने बैठा दिया, ठीक है, और बैठाने के बाद क्या कर रहे हैं हम, उनकी तरह दूसरे, अरे ये तो बड़े शक्तिशाली स्वामी हैं, सुना है शक्तिवेश अवतार हैं, सुना है चैतन्य महाप्रभु के सेनापति हैं, अरे ये तो कुछ भी आशीर्वाद, ही कैन गिव एनी बेनेडिक्शन. सो आई एम सिटिंग, आई एम नॉट इवन आस्किंग हिम वंस कैसे आपको खुश करें, कैसे इनसे ले लो कुछ. उसको बोलते हैं कर्मयोग, उसको भक्ति योग नहीं बोलते. कर्मयोग मतलब भगवान से, लेकिन कनेक्शन है, कुछ कनेक्शन है, भगवान से कनेक्शन है. कर्म भोग अलग है. कर्म भोग तो भगवान को भाड़ में जाए, हमको क्या करना, मैं मेहनत से कमा लूंगा. कर्म योग में आदमी मेहनत से कमा रहा है, लेकिन सम ऑफरिंग इज देयर. देन ज्ञान योग इज दैट ही इज स्टिल नॉट लिसनिंग. प्रभुपाद इज सेइंग कि देखो वैकुंठ धाम है, न तद भाष्यते सूर्यो न शशंक न पाव कहा. कल सुना था, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम. सुना, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं वैकुंठ धाम में ना तो सूरज की जरूरत है ना चंद्रमा की जरूरत है. अरे एक्सेप्ट करो. नहीं, मैं जो भौतिक देखा है उससे सोचेगा, उसको बोलते हैं ज्ञान योग. ज्ञान योग घमंडी है, ही इज वेरी प्राउड, ही विल नॉट लिसन एवरी वर्ड दैट इज कमिंग. जो शास्त्र में जो शब्द है दैट इज कमिंग फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ड, उसको पूर्ण रूप से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. नहीं करेगा, ही विल स्पेकुलेट बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस. ओह, सन का जरूरत नहीं है तो ऐसा होगा. अरे तू, तेरे को क्या एक्सपीरियंस है, एक्सेप्ट व्हाट द शास्त्र से. ही विल नॉट एक्सेप्ट. देयरफॉर प्रॉपर बुक्स आल्सो रीडिंग, वेरी फ्यू पीपल कैन रीड प्रॉपरली. आसान नहीं है. जैसे जब करते हैं, ठीक है, आप जब कर रहे हो, आपका मन इधर उधर इंद्रिय भोग में भाग रहा है, आप भक्ति योग नहीं कर रहे, आप कर्म योग कर रहे हो. अभी जब कर रहे हो इसलिए योग आ गया, अभी भक्ति योग शुरू नहीं हुआ. आप जब कर रहे हो लेकिन मन ऐसे कुछ स्पेकुलेशन चल रहा है, ऐसा है तो ऐसा. अरे शास्त्र सुनो ना, क्यों तुम स्पेकुलेट कर रहे हो. ज्ञान योग कर रहे हो. भक्ति योग होता है जब प्रेम से जब कर रहे हो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा. ठीक है, so this is to be very clearly understood that actually Acharya has great desires. भक्ति योग मतलब जैसे प्रभुपाद जी आए हैं, ठीक है. कर्मयोग मतलब उनसे कैसे फ़ायदा ले लें, बिकॉज शक्तिशाली हैं, चैतन्य महाप्रभु के सेनापति हैं, सुना है. कुछ लोग बोलते हैं शक्तिवेश अवतार है, अब और तो बहुत शक्तिशाली है, इनसे कुछ आशीर्वाद ले लो. कर्मयोग हो गया. ज्ञान योग है, कुछ बोल रहे हैं, नहीं सुनेंगे लेकिन अपनी तरफ से, अपने एक्सपीरियंस से, हो ऐसा होता होगा, वो भी गलत है. ध्यान से सुनो, डायरेक्ट स्पिरिचुअल वर्ड से शब्द आ रहे हैं, उसको एब्जॉर्व करो, होता है भक्ति योग. एग्री? ये नहीं पूछ रहे कि अपने दिमाग को नहीं लगाओ समझने के लिए, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से ज़्यादा घमंड नहीं करो. हमारा एक्सपीरियंस क्या है इस दुनिया में, शरीर होता है तो दर्द होता है. इफ़ यू हैव बॉडी इट गिव्स यू पेन. लेकिन जब शास्त्र में बोला जाता है आपका स्पिरिचुअल बॉडी है, अरे बॉडी मतलब पेन. अरे ध्यान से सुनो, स्पिरिचुअल बॉडी डज नॉट मीन पेन. अभी आप भक्ति योग, जब आप स्पेकुलेट करते रहोगे अपने एक्सपीरियंस से, आप ज्ञान योग में आओगे, भक्ति योग में नहीं आओगे.
ठीक है, तो इस तरह आपको ध्यान से समझिए. इफ यू कम टू भक्ति योगा, व्हाट विल हैपन? दैट विल गिव यू टोटल सेटिस्फैक्शन. सवै पुंसा परा धर्मा यथा भक्ति अधोक्षजे. देखो है तो की अप्रतिहता ययात्म सुप्रति. टोटल सेटिस्फैक्शन विल कम व्हेन यू कम टू प्योर भक्ति योगा, अपने ही फायदे के लिए. हम लोग सोचते हैं भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांता कृष्ण भक्त निष्कामा केवल शांता. कुछ लोग को भोग चाहिए, अशांत है. देखो प्रॉपर से दे आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कृष्णा विथ प्रिटेंशन. प्रिटेंशन मतलब प्रिटेंड. प्रिटेंड मतलब नाटक. प्रिटेंड होता है ना, प्रिटेंड को व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिटेंड? नाटक. नाटक है. भगवान के सामने बैठे हैं, आपको कैसे खुश करें? नहीं, प्रिटेंड, नाटक चल रहा है. अब भगवान से नाटक छुप नहीं सकता, उनको दिख जाता है. तो आपको असली भक्ति नहीं देंगे. बाकी सब चीज़ भगवान आसान से दे सकते हैं. आपको कभी दिल में खुशी नहीं आएगी. भुक्ति. कर्मयोगी लोगों की प्रॉब्लम क्या है? भुक्ति, भोग की इच्छा है. आजकल के लोग तो कर्मयोगी भी नहीं है. क्यों? वे कर्मयोगी नियम पालन करता है शास्त्र का. दे डोंट इवन फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, है ना. Therefore, they are not even karma yogis. They are animals. Mlechas, Yavana. Kirata, Hunanda, Pulinda, Pulkasha, Avir, Shamba, Yavana, Kashadayaha. ये सब पाप योनि में ही लोग जनरली हैं, उसके ऊपर नहीं है. So, therefore, pretension should not be there. कर्म योगी, ज्ञान योगी का pretension है. भुक्ति मुक्ति, वो भी भगवान के पास जाता है, भगवान को खुश करने नहीं जाता. क्या चाहिए उसको? मुक्ति चाहिए. दुनिया में बड़ा दर्द है, इससे निकलो बस. भगवान से उसको मतलब नहीं है. भगवान क्या? मैं भगवान बन जाऊंगा. मुक्ति, 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 है ना. उसका पॉइंट होता है मर्ज करना भगवान को, सेवा करना नहीं चाहता. हनुमान को बोलो भगवान को मर्ज करोगे, विल यू मर्ज इनटू गॉड? इज नो, आई डोंट वांट माय सेवा टू बी इंटरप्टेड. व्हाई? इज आल्सो एंजॉयिंग द सेवा. ओके, क्या फ़ायदा? मर्ज होके क्या फ़ायदा? मुक्ति मुक्ति सिद्धि. सिद्धि, आदमी को कुछ सिद्धि पावर चाहिए. योगा करके उसको सिद्धि चाहिए. कह रहे वो ज़मीन से 1 फीट हो गया, उसका फ़ोटो लगा देगा चारों तरफ फेसबुक में, देखो मैं हूँ. जनरली वो कूदते हैं ऐसे, देखा है आपने? जब बोलते हैं ना ये लोग कि क्या योग करेंगे और हवा में उछलेंगे, अगर आप उनको वीडियो देखो, उनको प्रैक्टिस हो जाती है कूदने की. ऐसे करके सॉफ्ट कुशन में बैठे, आप ही कोशिश कर सकते हो. 2-3 कुशन में बैठो, थोड़ा 3-4 लगाओ, और जब ऊपर होते हैं फोटो ले. और लोग सोचते अरे यार ये कुछ मेडिटेशन से लिफ्ट हो गया. जनरली कलयुग में सब नाटक है. मैं भी जब बचपन में था तो अपना तो वैदिक चीज़ों से तो हिंदू हैं तो बड़ा आकर्षित होता है कि somebody has proved इट्स वेदास आर पावरफुल, है ना. तो देखता था लोग कूद रहे हैं और वो स्केल लगा के दिखा रहा है कितना उठ गया. हम लोग तो बो. ये सब प्रभुपाद जी की कृपया समझ आ गया, ये सब बकवास है. अगर आपके पास है भी कुछ सिद्धि, इवन इफ यू गॉट सम सिद्धि, यू कैन लिफ्ट 1 इंच और ½ इंच और 1 मीटर. व्हाट इज द यूज? प्रभुपाद गिव्स एन एग्जांपल. नो, एक गांव में क्या हुआ था, एक आदमी था बचपन में, ही वेंट टू योगीज in one village. One small child was there, he went to the yogis. You know the story. So he stayed with the yogis for say 20 years. योगी लोगों के साथ 20 साल रहा. स्टोरी मालूम है? फिर वापस आया तो सब लोगों ने पूछा क्या सीखा. So everybody asked, what did you learn? What did you learn there? He said, I can walk on water. People say, oh. So when will you show? Tomorrow I'll show morning. People, oh, you walk on water. So one person was sitting. ये तो 2 पैसे का काम. अभी भी मायापुर में 1 रुपये का टिकट है ना, बोट से जाने का. 1 रुपये का टिकट है. आपको वहाँ कहाँ से, नवद्वीप से मायापुर घाट 1 रुपये का टिकट. ये तो बोलता 1 रुपये का चीज़ है. बोलता क्यों? तू 20 साल मेहनत किया और आपका तपस 1 रुपये का. तो उसको बड़ा इंसल्ट हो गया. आई कैन वॉक ऑन वाटर. इसे तू वॉक ऑन वाटर में 1 रुपये देगा, नवद्वीप से मायापुर घाट चला जाएगा. क्या फ़ायदा तुम्हारा काम का? जो तू कर रहा है 1 रुपये का काम है ना, बोट में चला जाएगा. तो सिमिलरली सिद्धि काम ही बस. लेकिन लोगों को बड़ा आकर्षण होता है, बेवकूफ़ लोगों को. लेकिन एक्चुअली वो अपने को भी बेवकूफ़ बना रहा है, लोगों को भी बेवकूफ़ बना रहा है, अपने को भी बेवकूफ़ बना रहा है उसको, क्योंकि शुद्ध भक्ति नहीं मिलेगी. मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम केवल अशांत. क्यों? बिकॉज देखिए हमारा फर्स्ट थिंग इज वी आर ट्राइंग टू सी द, हम अपने को प्रोटेक्ट कर रहा है. वी हैव टू प्रोटेक्ट अवरसेल्फ.
Other thing we should also understand. Prabhupada says again and again, this world is doomed. ये दुनिया खत्म होने वाली है. ये लोगों ने, ये राक्षसों ने दुनिया खत्म कर दी है. ये बचने नहीं वाला है. किस तरह से भी देख सकते हो. एक तरफ से देख सकते हो कि जब आदमी नास्तिक हो जाता है, when a person become नास्तिक, he become disbeliever in God, it's the most inauspicious situation. ठीक है. Second way, you can see the amount of sinful activity people are doing. They great punishment. Correct? India, you see how many hundreds of years India was looted and people were killed, because in this only desh people are killing cows. This country itself. The reaction will come. Don't worry. Individually, collectively, reaction will come, and it has come. So again, sinful activities are going on. This world is doomed actually. The whole world is doomed. Why? Sinful activity. Reaction will come. आएगा रिएक्शन. बचेगा नहीं कोई नहीं बच पाएगा. भगवान के नियम बहुत खतरनाक होते हैं. जो छू रहा है इंडिविजुअली या कलेक्टिवली, सब ध्वस्त होने वाला है. दो चीज. तीसरा चीज, ऐसा उग्र कर्म सिविलाइजेशन बना दिया इन्होंने कि सबको पता है ये दुनिया नहीं रहने वाली. अभी हवा में बॉम्बे, एक दिन बॉम्बे में रहोगे, साइंटिस्ट आर सेइंग 100 सिगरेट पीने के बराबर है. कि कौन आदमी रह पाएगा. ऐसा अभी हो रहा है. अभी आगे चलते रहो, पूरा आपका वेदर डिस्टर्ब हो रहा है. रिवर गया, आपका सारा रिवर का पानी पीने लायक नहीं है. बैंगलोर में अब तालाब की ऐसी हालत है कि झाग निकल रहा है सफ़ेद सफ़ेद. कभी कभी आग लग रही है उसमें. ऐसा तमाशा हो रहा है. यू नो, द पॉल्यूशन इज बिकमिंग इंटेंस. सो इंटेंस इट विल बिकम लाइक सम सिटीज इन चाइना. हर घर के अंदर एयर प्योरीफायर चाहिए, और बाहर निकलते हैं लोग इतना बड़ा वो लगा के. यू नो, इट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट, एंड ऐसा चलता रहा, दे आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड. सो वन सेंस, महाव्रता, वी आर वेरी सिंसियर, we understand what is pure devotion, we protect ourselves. Other sense, we also see how to protect the world. Correct? One sense we protect ourselves. We also should understand the world is doomed. But already you are benefiting the society. जब आप बैठ के ध्यान से जप करते हो, यज्ञ, what is the shloka? अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्या अन्न संभवा. Then यज्ञनाद भवति पर्जन्यो. जब ध्यान से जप करते हो, कीर्तन करते हो, उससे भी फायदा हो रहा है. यू कैन अंडरस्टैंड पीपल ऑफ. एक्चुअली पहले लोगों को ये ज्ञान होता था. क्या ज्ञान होता था? कि जो दुनिया है एक्चुअली बिलोंग्स टू द लॉर्ड्स डिवोटीज. बिकॉज ऑफ गॉड्स डिवोटीज, गॉड इज मेंटेनिंग दिस वर्ल्ड. सपोज इन अर्थ देयर इज नॉट अ सिंगल डिवोटी, एक खाने का दाना नहीं होगा यहाँ पे. बिकॉज कुछ यज्ञ होने का, नहीं तो खाना नहीं मिलता. यज्ञनाथ भवति पर्जन्य. यज्ञ की वजह से रेन आता है, रेन की वजह से खाना आता है. अगर कोई यज्ञ नहीं कर रहा तो खाना कहाँ से आएगा? पहले लोगों को क्लियर मालूम था. इसलिए दिस इज क्लियर. सो वंस वी आर एक्चुअली अ डिवोटी, व्हेन ही इज सर्विंग कृष्णा, ही इज अट्रैक्टिंग अटेंशन ऑफ कृष्णा. ऑल ऑस्पिशियसनेस इज कमिंग. So agar aap, when you become a pure devotee of Krishna, you are bringing blessings to the whole world. Agar aap Bhagwan ke, if you become a Shuddha Bhakta, you are bringing mercy of Krishna not only to you, you are also bringing mercy to your family, because they also get blessed. You are also bringing blessing to the whole world. समझ गए ना? when आप भगवान के शुद्ध भक्त बनते हैं तो आपको ब्लेसिंग मिला, आपके फैमिली को ब्लेसिंग मिलता है भगवान का, और पूरी दुनिया को ब्लेसिंग मिलता है. वाई? यज्ञनाथ भवति पर्जन्या.